what we are doing is a news analysis. So I do feel that the uptrend may continue in the long term, Vaishali. Thank you, Dr. Kohli, for joining me on the broadcast. And now moving on, a thick layer of haze continues to hang over Delhi as the air quality remains in the very poor category for the third consecutive day. With a reading of 309, the Central Pollution Control Board has stated today morning data from the CPCB developed Sameer Rap showed Alipur at 421, Jahangirpuri at 404 and Wazirpur at 404 being the most polluted areas in the national capital, as the air quality index there fell in the severe category. The majority of the 39 air monitoring stations in the city saw air quality range between poor and very poor levels. I, of course, have my colleagues joining me to give you viewers an overview of what's happening in Delhi NCR when it comes to the AQI levels. I, of course, have Arzu joining me from Delhi, Arzu Seth, of course, Akram Khan from Noida, Anil Chaudhary from Ghaziabad and Gulshan Grover from Gurugram. I want to go across to Arzu Seth from Delhi. Arzu, my first question to you is, what is the AQI level where you are currently, and what is the situation on the water sprinklers, the precautions that the government promised? Show you the AQI at this particular point of time in the national capital, and also at the place where I'm standing is the ITO, and this is the data we are currently showing you the AQI level in the national capital. The overall AQI in the national capital is in the very poor category, which is 311. So this currently this is in the red zone, and if we talk about other places in the national capital, also you can see, you can search for cities and also other areas of the national capital. So the situation is very tense at this particular point of time. So these are the places in the national capital where you can currently see the stations. Alipur, the AQI is 421. At ITO, where I'm standing right now, the AQI is 349, which is near 350. Also at Punjabi Bagh, it's 360. So a lot of places where the AQI is above 350. Also there are places where AQI is above 400. At Anand Vihar also the AQI is above 400. At Wazirpur also, if you can see, the AQI is 407. Bhavana also it's 402. So definitely at most of the places the AQI is above 400. Which comes under the severe category. So continuously what we are being told that government is keeping close eye on these hotspot where AQI is above 400. These are the hotspot in the national capital where the pollution continues to be in the severe category. Also would like to show you the picture also how it looks like. So this is the ITO where AQI is near 350. And as you can see, there is a blurriness in the environment, there is a low visibility. As you can see, the building also, which is just a few meters away from me, is very lightly visible. There is a smog that in the environment which can clearly be seen. Also you talked about what measures are government taking. Yes, the government is saying that it's just been 7 months they are in power. They are keeping close eye on the hotspot. They are ensuring that there should be less traffic congestion in the areas where there are heavy traffic congestion. Also just few minutes back, as you can also see, there is some water that has been sprinkled, as there was a water sprinkle that has moved from this particular road. So water sprinkling is also being done at the several places in the national capital. But at the same time, if you see the other row, the entire road is congested. There is a lot of vehicular movement at this road also. So definitely there are several reasons for the air pollution in the national capital. But yes, one of the reason is the vehicular congestion that you can clearly see in the national capital. As you can see, the entire road is filled with cars, and also the traffic congestion that is there at this ITO road. So there is a lot of pollution in the national capital, and there is no sign of relief, as what we are being told that
cloud seeding trial, 2 trials have already been done, but yes, after the favorable condition there will be other trials that will happen, but as of now there seems to be no relief as there is no rainfall in the national capital. Yes. And look at those visuals, viewers, that we just showed you. On one hand, where you're seeing water sprinkling on the road. On the other hand, to the right, you see the kind of congestion that the traffic is causing. I'd like to go across to Akram Khan joining me from Noida now. Akram, नोएडा में क्या सिचुएशन है AQI लेवल की, पहले ये बताइए, और उसके बाद मुझे ये बताइए कि वहाँ पे वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है कि नहीं हो रही? देखिए, अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की अगर आज की AQI लेवल की बात करें तो अभी तक का 329 दर्ज किया गया है, जबकि पिछले 2 दिन पहले 10 से 15 AQI लेवल जो था वो कम था नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। लेकिन थोड़ी दिक्कतें कही जा सकती है, क्योंकि 2 दिन में जिस तरह से 15 से 20 AQI लेवल बढ़ा है, उससे लोगों को मुश्किलें जरूर हुई हैं। और जहां तक वाटर स्प्रिंकलर मशीन पे बात की तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 6 से 8 बताई जा रही है ग्रेटर नोएडा में, जो पानी का छिड़काव भी कर रही है, और डस्ट स्वीपिंग मशीन जो है रोड पर वो लगाई गई है। इसके अलावा टैंकरों के जरिए जो पानी, पेड़ पौधे हैं उन पर जो डस्ट है उसको भी साफ किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम जो कवायद हैं वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो दफ्तर हैं उनके 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में देखने को मिलती हैं। बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर अभी जो डस्ट और जो खुले में सामग्री है और कंस्ट्रक्शन साइट से वो चल रही है, जिसको लेकर जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये बेहद चिंताजनक स्थिति में यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है। और देखिए, दूसरी एक और बात कहें तो जो हाईवे है वो उनका दबाव ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर AQI लेवल में उसकी वजह से भी ज्यादा जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा करनी शुरू करी है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, लोगों ने आलोचना शुरू की है अधिकारियों की। उसके बाद कल दादरी के SDM अनुज नेहरा जो थी वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर निकली, वहां पर उन्होंने कुछ जुर्माने जरूर किए। और अगर गौतम बुद्ध नगर में बात करी जाए तो 15 अक्टूबर से लेकर अभी तक 1 करोड़ 2 लाख रुपए के जुर्माने की पुष्टि अब तक जिला प्रशासन ने की है। लेकिन खुले में सामग्री, कंस्ट्रक्शन साइट्स का चलना और जो अधिक दबाव है उसकी वजह से जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जो मौसम विभाग है उसने एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आज से सक्रिय हुआ है, और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, सुबह से ग्रेटर नोएडा में जो धुंध है और जो आसमान में बादल छाए हुए हैं उसको आप देख सकते हैं। हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है, लेकिन जो ग्रेटर नोएडा में जो बारिश के आसार हैं वो हालांकि जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। दिल्ली NCR में पूरे में जताए गए हैं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो बन रहा है उससे आज जो पहाड़ों में बर्फबारी होगी और उसके बाद जो मैदानी इलाके में है उन तक ठंड की जो दस्तक है वो पहुंच जाएगी। हालांकि अभी तक जो गुलाबी सर्दी थी वो अब ठंड में तब्दील होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से 8 नवंबर तक ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना है उसका असर देखने को मिलेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी तो होगी। दिल्ली NCR में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, और इसके बाद 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा है वो चलेगी, तो उससे कहीं ना कहीं AQI लेवल में जो गिरावट है वो तो दर्ज की ही जाएगी। इसके अलावा जो सर्दी है वो दिल्ली NCR में बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन देखिए, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, वो अभी तक कहीं भी ऐसी ठोस रणनीति पर काम करता हुआ नहीं दिख रहा है जिससे लगे कि AQI लेवल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लोगों को राहत मिल सके। इसके अलावा जी अकरम, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। आई हैव अनिल चौधरी जॉइनिंग मी फ्रॉम गाजियाबाद। नाउ अनिल, ये तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि AQI लेवल क्या है, बट ज़्यादा ज़रूरी अब ये है कि प्रशासन क्या स्टेप्स ले रहा है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो वहाँ पे क्या वाटर स्प्रिंकलिंग रेगुलरली हो रही है कि नहीं, ये बताइए। देखिए, हालात तो सही नहीं है। लगातार AQI जो है बेहद खतरे के निशान पर पहुंचा हुआ है। AQI आज 400 के पार पहुंच गया है कुछ इलाकों का, गाजियाबाद का। जैसे कि बात की जाए, लोनी जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है वहां पर 422 जो है AQI दर्ज किया गया है। वहीं इंदिरापुरम 337 है और संजय नगर 360 है और वसुंधरा 390 AQI दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। लोगों को अब गाजियाबाद में सांस में दिक्कत हो रही है, लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश, और जो दमे के मरीज हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो लगातार अस्पतालों के चक्कर भी काट रहे हैं। तो अब जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की, एक कड़ा एक्शन एहतियात करने की, क्योंकि ग्रैब 2 के नियम पहले से ही लागू हैं। उसके बावजूद भी
ग्राउंड जीरो पर उस तरीके का काम नहीं दिखता है। जिस तरीके से ग्रेड 2 के नियम जब लागू होते हैं तो ये कहा जाता है लगातार पानी का छिड़काव सड़कों पर होता रहना चाहिए, पर बिल्कुल भी सूखी सड़कें हैं वो भी हम दिखा देते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से कोई भी छिड़काव गाजियाबाद में अभी नहीं हुआ है। और वहीं दूसरी तस्वीरें आप देखेंगे, जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो धुंध की चपेट में है। ये पोल्यूशन की वही खतरनाक चादर है जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद की जनता को कर रही है, और लोग बेहद परेशान हैं। लोगों को उम्मीद है हो सकता है कुदरत की मेहर हो तो बारिश हो जाए तो थोड़ी सी राहत लोगों को मिल जाए, पर अधिकारियों की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिली है। तो लोग चाहते हैं कि कुदरत की मेहर हो तो थोड़ी सी बारिश हो तो जिससे कि पोल्यूशन में राहत मिले। तो ऐसे में जरूरत है विशेष ध्यान देने की, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। ये कहा गया है कि जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। क्योंकि एम्स के डॉक्टर्स की तरफ से ये कह दिया गया है, ये एडवाइस बताया गया है कि आप समझ सकते हैं हम पर डे 8 से 10 सिगरेट पी रहे हैं, तो बिना वजह का आप सोच सकते हैं जो स्मोक करता भी नहीं है वो भी स्मोक कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक जो पोल्यूशन और इन्वायरमेंट बना हुआ है। तो अब जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सारी जानकारी के लिए। नाउ आई लाइक टू गो अक्रॉस टू गुलशन ग्रोवर जॉइनिंग मी फ्रॉम गुरुग्राम। गुलशन, AQI लेवल का सवाल आपसे है और मुझे ये पूछना है कि हॉस्पिटल्स में क्या पेशेंट्स की बढ़ोतरी हो रही है इस रीजन से, पोल्यूशन की वजह से? देखिए, इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 दर्ज किया जा रहा है। कुछ इलाकों में 300 से नीचे भी है, 295 है, 270 है, कई ऐसे इलाके भी हैं, लेकिन जो कि बेहद वेरी पुअर कंडीशन में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और बात करें तो पेशेंट जरूर पहले से ज्यादा जो है अब OPD बढ़ गई है अस्पतालों में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और जिसमें सांस लेने में दिक्कत के मरीजों की बात करें, एलर्जी के मरीजों की बात करें, अस्थमा के मरीजों की बात करें, या फिर जुकाम के मरीजों की बात करें, बुखार के मरीजों की बात करें, आंखों में जलन के मरीजों की बात करें, ये मरीज जो है सबसे ज्यादा अस्पतालों में इस समय पहुंच रहे हैं। हमने जरूर गुड़गांव के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 2500 OPD जो है वो होती थी सिविल अस्पताल में, लेकिन अब ये संख्या लगभग 4000 के आसपास पहुंच गई है। यानी ये आंकड़ा अब धीरे धीरे और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है और उसको देखते हुए ये एयर क्वालिटी जी गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई लाइक टू थैंक ऑल माय रिपोर्टर्स फॉर जॉइनिंग मी with all those details on the AQI levels, viewers. And with that, that's a wrap from me on this bulletin. Stay tuned to NewsX for more news and updates. MDH का किचन किंग किचन में हो तो